اور اس علاقے میں چونکہ کے جے ہڈلی ڈی جے ہڈلی کا بھی واقعہ پیش آیا، ان کی رہائی کے لیے بھی پیش رہے تھے اور بہت ساری میٹنگیں شاہ ولی اللہ میں بھی حاضر ہوا. اور معاف کرنا اکھنڈا شری نواس مورتی کو جو اس کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے اور اتنی مضبوطی سے اتنے ارادے سے کھڑے تھے کہ کانگریس پارٹی کو اور لیڈران کو تمام کو جو ہے اپنا ارادہ بدلنا پڑا اور یہاں تک کہ کینڈیڈیٹ کو بدلانا پڑا. اس وقت ہمارے ساتھ آل انڈیا ملی کونسل کرناٹک کے ریاستی صدر مولانا نوشاد عالم قاسمی صاحب موجود ہیں. فرمائیے، یقیناً آج ایک المناک دن ہے. آج ہمارے لیے بہت غم و رنج کا دن ہے کہ ہمارے ایک بزرگ عالم دین محدث کبیر خادم الحجاج شیخ الحدیث بانی المحتم شاہ ولی اللہ دارالعلوم شاہ ولی اللہ بنگلور کا انتقال ہو گیا. اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے. آپ بڑے بزرگ اور بڑے عالم متقی انسان تھے. آپ کی بڑی بے شمار خدمت ہے، بنگلور میں نہیں، ملک میں نہیں، بلکہ آپ عالمی شخصیت تھے. آپ دارالعلوم شاہ ولی اللہ کے بانی و محتمم ہیں. ہزاروں لاکھوں طالب علم وہاں سے فارغ ہوئے، جس کے سبب آپ ہیں. اللہ آپ کی مغفرت فرمائے. اور آپ کے تعلقات اکابر اسلاف سلف صالحین سے بھی تھے. آپ حضرت مولانا شیخ الحدیث یونس صاحب جونپوری کے خاص خلیفہ مجاز ہیں. جونپوری شیخ الحدیث جس کے بارے میں بتایا تھا کہ عرب نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جونپوری سے میرا سلام کہہ دو شیخ الحدیث یونس صاحب سے. تو اب انہوں نے کہا کہ حضرت رسول اللہ میں کیسے پہچانوں؟ کہا مجھے دیکھ لو، ان کو دیکھ لو. تو ایسے لوگوں سے آپ کے تعلقات تھے. آپ نے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو حج کی تربیت دی ہے. آپ نے مناسک حج بتایا ہے، عمرے کے طریقے بتائے ہیں. آپ کے لاکھوں شاگرد ہیں. جنازہ اتنا بڑا مجمع، یہ آپ کی مغفرت کی دلیل ہے. اللہ آپ کی مغفرت فرمائے. اللہ ہم سب کو نعم البدل عطا فرمائے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت نواز زین العابدین صاحب رشادی مظاہری دعوت رحمۃ اللہ علیہ کے نماز جنازے کی شرکت کا موقع ملا. الحمدللہ حضرت والا عالمی شخصیت تھے. رابطہ مدارس دارالعلوم دیوبند کے آپ رکن رکین تھے اور اسی طرح معلم الحجاج کے لقب سے آپ موسوم تھے. الحمدللہ دارالعلوم شاہ ولی اللہ میں آپ نے دیرینہ خدمات، تقریباً 40 سالہ خدمات آپ کی رہی. آپ کے ذریعے سے ہزاروں طلبہ خود کرناٹک اور بیرون ریاست میں دینی فرائض کا کام انجام دے رہے ہیں. ہم سب دعا گو ہیں اور اتنا بڑا مجمع اس بات کی دلیل اور عکاسی کرتا ہے. حضرت والا مغفور ہے، حضرت والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں مقبول ہے. مجمع امن کر آ رہا تھا اور ٹیانی روڈ کے راستے پورے بلاک تھے. ہم دعا ہے کہ آپ کی چاہت، آپ کے سلسلے میں محبت لوگوں میں کتنی آیا تھی. شکریہ، بہت بہت شکریہ. الحمدللہ آج ہمارے لیے بہت ہی انتہائی رنج و غم کا دن ہے کہ ہمارے درمیان حضرت مولانا محمد زین العابدین صاحب رشادی رحمۃ اللہ علیہ نہیں رہے. الحمدللہ آپ کی خدمات بہت زیادہ ہیں اور 40 سالہ اپنی زندگی میں معلم الحجاج بن کر بہت سے حاجیوں کے لیے انہوں نے رہنمائی کی ہے اور اسی طریقے سے ہزاروں شاگرد اور اپنے ہزاروں متعلقین کو سوگوار چھوڑ کر گئے ہیں. ہمیں چاہیے کہ حضرت کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ سنتوں کی پابند رہتے تھے اور سنتوں پر چلنے کے لیے تاکید کرتے تھے. جہاں کہیں بھی سنت کے خلاف کوئی کام ہو وہ برداشت نہیں کرتے تھے. اور اسی طریقے سے سیاسی لوگوں کے درمیان میں بھی، عوام میں بھی بڑی مقبولیت تھی اور دینی کام کو لے کر بھی اور قوم و ملت کے کاموں میں بھی پیش رہتے تھے. اور آپ کا نعم البدل تو کوئی نہیں ہو سکتا. بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ حضرت کو غریق رحمت کرے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا. الحمدللہ حضرت کے متعلق تو اس بات کی ہرگز بالکل ضرورت نہیں ہے کہ تعارف کیا جائے. با اثر اور ملک بھر میں بلکہ دنیا بھر میں آپ کی شخصیت کا اللہ نے مقام اور رتبے کو اللہ نے
आम किया था और जगह जगह आपसे मुंसलिक अहबाब आज के इस सदमे से गमज़दा रंजीदा हैं। अल्लाह जल्ला जलालहू से दुआ है कि अल्लाह ताला हज़रत की मग़फ़िरत फ़रमाए और आपसे मुताल्लिक़ मुंसलिक अहबाब की सब्र के फ़ैसले फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाक़ियतन हज़रत जो थे वो हमा जहज शख्सियत थे। अल्लाह ताला ने बहुत सारे खूबियों को उनके अंदर रखा था। एक तरफ जहाँ पर हकीकी आप मुअल्लिम थे, दूसरी तरफ मुअल्लिमुल हुज्जाज थे, कौम के रहबर और रहनुमा थे। अल्लाह ताला ने खिदमत लिया है, हम सब के लिए मिसाली शख्सियत। इसी वजह से आज सारी उम्मत का, सारी रियासत का, सारे मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत को गरीक़ रहमत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से तकरीबन जब से हज कैंप का यहाँ इनेकाद हुआ है उस तारीख से लेकर आज तक बराबर हाजियों की खिदमत में लगे हुए थे, बेलौस खिदमत कर रहे थे। और हर जाने वाला हाजी वो याद रखेगा उनको और उसके आखिरी सांस तक याद रखेगा। माशाअल्लाह बहुत उम्दा तरीके से हज के अरकान और हज का तरीक़ा, मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत वगैरह बहुत प्यारे अंदाज से समझाते थे। वैसे हमारे साथियों में से हैं हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब रशादी नव्वरल्लाहु मरक़दहू। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और आला इल्लियीन में जगह अता फरमाए। समाजी और माशी और सियासी मसाइल पर भी आप खामोश नहीं बैठते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हज़रत को ऐसा मलका अता फरमाया था, वो हर मैदान के शहसवार थे। कौम के ताल्लुक़ से जो भी मसला आता उस मसले में पेश रहते थे और बेबाक थे, बेलोस थे। पूरी रियासत कर्नाटक में अभी बहुत सारे हमारे जो है सियासी हज़रात, उन्होंने भी इस बात का इजहार किया कि कौम के ताल्लुक़ से, हमारी कम्युनिटी के एतबार से जो भी मसाइल उठते तो वो फ़ौरन आगे बढ़ते, किस तरह ये मसाइल हल हो। अल्लाह ने बहुत सारे कमालात से नवाजा था। बस अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह का निज़ाम है कि सभी को जाना है। बस हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत फरमाए, बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और वारिसीन को और हम तमाम को और अहले खाना को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह ताला आपका नेअमल बदल अता फरमाए। कहाँ से आए आप मौलाना? मैं मधुगिरी का रहने वाला हूँ जी, मोहम्मद आफ्ताब कासमी। जी बताइए मौलाना, कहाँ से आप आए हैं और आज के इस मौके पर क्या फरमा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नए दिल्ली से हमारा यहाँ आना हुआ हज़रत की इस इंतकाल से शहर बेंगलुरु नहीं बल्कि सूबे कर्नाटक से आगे बढ़कर इंडिया और कई सारे ममालिक से भी बहुत सारे हज़रत की इंतकाल पर अफसोस कर रहे हैं। ख़ासकर शहर बेंगलुरु को बहुत तकलीफ़ हो रही है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हज़रत का नेमल बदल अता फरमाए और अकाबिरीन हमारे दरमियान से किसी एक आलिम का उठ जाना एक आलम का उठने के मुतरादिफ है। इसलिए हमें इस बात सबक देकर जा रहे हैं हमारे बड़े कि हमें भी एक ना एक दिन अल्लाह के यहाँ जाना है, अल्लाह के यहाँ सूरत दिखाना है। इसलिए हम ये मुख्तसर सी ज़िंदगी में अल्लाह की मर्ज़ी से आए हैं, अल्लाह की मर्ज़ी से जाना है और दरमियानी ज़िंदगी भी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजर जाए और ईमान की हालत में हमारी ज़िंदगी हो और ईमान की हालत में हमारा ख़ातिमा बिलखैर हो। यही सबसे बड़ी दौलत है। एक छोटी बात यह है कि अल्लाह के नबी, बड़ी बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई मरतबा ज़ाहिर में खुले जगह पर, कमरों में, घर में, सफ़र में, हज़र में, हर जगह उनको दीन की दावत देते रहे, लेकिन उनके हक़ में ईमान नहीं था। आखिरकार वो बग़ैर ईमान के दुनिया से चले गए। वहाँ अल्लाह के यहाँ ख़ानदान नहीं चलता है, यहाँ अल्लाह के यहाँ नसब हसब नहीं चलता है। जो चलता है वो अल्लाह के यहाँ ईमान की बदौलत अल्लाह के यहाँ उसकी मग़फ़िरत होगी। और बग़ैर ईमान के कितना भी बड़ा अपने वक्त का बादशाह हो या रईस हो,
अल्लाह के यहाँ उसकी मग़फ़िरत नहीं हो सकती। यही मेरी चंद तासुरात हैं कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं हमारे हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाल मग़फ़िरत फरमाए। मुअल्लिमुल हुज्जाज इनका लक़ब था। अल्लाह क़ियामत के दिन उनको मुअल्लिमुल हुज्जाज के लक़ब ही से उनका हाजियों के साथ, शुहदा के साथ, सुलहा के साथ अल्लाह उनका हशर फरमाए। अल्लाह उनके क़ब्र के गड्ढे को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनके सवाल और जवाबात को आसान फरमाए। जितने लोग कसीर तादाद में हज़रत की नमाज जनाजे में शरीक हुए हैं, हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नमाजी 40 आदमी किसी के जनाजे में शरीक हो जाए, अल्लाह उसकी उम्मीद है कि अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर देंगे। यहाँ हज़ारों उलमा, हज़ारों शाकिर और हज़ारों तलबा तादाद, इतनी कसीर तादाद में आए थे। उम्मीद है कि अल्लाह इनकी मग़फ़िरत कर दिया है और अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस से हम सब की भी मग़फ़िरत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाहि अलैह यकीनन एक बहुत कामयाब ज़िंदगी गुजार कर दुनिया से तशरीफ़ ले गए। अल्लाह पाक ने आपके अंदर बहुत सारे खूबियाँ और कमालात रखा था। यकीनन ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने नेकियों में गुजारा है, अच्छाइयों में, खूबियों में गुजारा है। इंसान की मग़फ़िरत के लिए जितने असबाब ज़रूरी हैं उनमें से अक्सर असबाब उनके पास मौजूद थे। जैसा कि हदीस पाक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, औ युनतफ़अु बिही, जब कोई आदमी इंतकाल हो जाता है, अगर वो शागिर्दों का एक सिलसिला छोड़ा है तो वो उसके लिए सदक़े जारिया है। ये तिरमिज़ी की रिवायत है। इसी तरह हाजियों की तरबियत करना, तलबा की तरबियत करना, जहाँ जाते हैं इस्लाही मैदान बहुत बड़ा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाया। जैसा कि कुरान करीम में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम, तो मदरसा भी आपका बड़ा शानदार और दावत व तबलीग की मुबारक मेहनत से भी मुंसलिक और सुलूक के सिलसिले में भी आप बहुत मजबूती से जमे रहे। चुनांचे हमारे मुल्क के अकाबिर उलमा से आपको खिलाफत भी हासिल थी। अल्लाह का शुक्र है, ये हज़रत का मिजाज शाह वलीउल्लाह में पढ़ने वाले हर तालिब इल्म के अंदर है। आप देखेंगे इस मदरसे की खुसूसियत यह है कि यहाँ अक्सर असातिज़ा इकराम का जमात में वक्त लगा हुआ है और यहाँ के जितने भी फारिग उलमा तलबा हैं, गाँव में, देहात में, जहाँ कादियानियों की मेहनत है, जहाँ लोग बुराई के साथ अपने बददीनी को फैला रहे हैं, वहाँ पर माशाअल्लाह हमारे यहाँ से फारिग हुए उलमा और तलबा बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ये सब हज़रत ही का तुफ़ैल है। इसी वजह से हम बरजस्ता इस बात को कहने पर आमादा हैं, हम ये इस बात को पूरी उसूख के साथ कहना चाहते हैं कि हज़रत रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के कामयाब मुहतमिम, कामयाब मुदर्रिस, कामयाब ख़तीब, कामयाब मुस्लिह और कामयाब मुअल्लिम गुजरे हैं। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का मिजाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अनोखे अंदाज में बनाया था। वो बच्चों के साथ बच्चे हो जाते, बड़ों के साथ बड़े हो जाते। इसलिए बड़ा मजमा उनके जनाजे में आज हाजिर था। हमें यकीनन अफसोस है और हज़रत ही का शेर मुझे याद आ रहा है। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह अक्सर हज पर जब तशरीफ़ ले जाते तो हम नाचीज़ों को हुक्म देते कि जुमे का खुतबा दें। सफ़र में हम साथ होते हैं, हम जमीयत में अरकान आमिला में भी हैं। चूँकि हज़रत को हम करीब से देखे हैं, हज़रत हमेशा एक शेर पढ़ते थे, याद कर दर वक्त ज़ादने तू हमा खंदा वो तू गिरियाँ, कि तेरे पैदाइश के वक्त को याद कर कि सारे लोग हंस रहे थे, तू रो रहा था। वहन चुना जीज, ऐसी प्यारी ज़िंदगी गुजारो कि तू खंदा व हमा गिरियाँ, ऐसी प्यारी ज़िंदगी गुजारो कि आप खुशी खुशी दुनिया से चले जाएं और आपकी याद में लोग रोते रह जाएं। आज एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है, लेकिन हम ये कहने पर यकीनन यहाँ तक पहुँचे हैं कि हज़रत यकीनन एक कामयाब ज़िंदगी गुजारे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत के दर्जात को बुलंद फरमाए। मक्का और मदीने में भी बहुत ही मशहूर व मारूफ उलमा में से शुमार किए जाते थे। अल्लाह ने आपको काफ़ी अवामी मकबूलियत अता फरमाया था। माशाअल्लाह आप 30 पर 8 साल मुसलसल हुज्जाज इकराम की तरबियत फरमाते रहे और ख़ुद बनफ्स नफीस हज के लिए भी तशरीफ़ ले जाते, वहाँ
मुख्तलिफ मुल्कों से तशरीफ़ लाने वाले बुज़ुर्गों से मुलाक़ात करना, उनसे फैज़याब होना, और फिर उसके बाद हज़रत मौलाना यूनुस जौनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह के खलीफे मजाज भी बनाए गए, और ऐसे ही राब्ते मदारिस के सदर मुंतखब किए गए, जमीयतुल उलमा के नायब सदर, और ऐसे ही मदरसे अरबिया शाह वलीउल्लाह के बानी व मुहतमिम, और दीगर बहुत सारे मिली समाजी इल्मी चीज़ों में बहुत ज़ौक़ व शौक़ के साथ मसरूफ़ रहते थे। और माशाअल्लाह इन सालों में कर्नाटका हज कमेटी के आप मेंबर भी मुकर्रर हुए और बड़ी अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे थे। कई सालों से मुसलसल बीमार भी चले आ रहे थे, और हम ये सोच रहे थे कि 2 दिन पहले भी मैं शिफा हॉस्पिटल में ICU में आपको देखने के लिए गया और आपसे मुलाकात भी किया, बातचीत भी किया, और जो कुछ पढ़ के शिफा की आयतें आप पर दम की जा सकती थी उनको दम भी किया गया। लेकिन ये सारी चीज़ें अल्लाह ही की तरफ से मुकर्रर करदा हैं। मौत हर एक को आनी ही है, कोई इससे भाग नहीं सकता। तो हज़रत गए हैं तो इसी वजह से हम कहते हैं व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिक़ून, आप पहले गए हैं, आपके पीछे पीछे हम भी चले आने वाले हैं। तो अल्लाह करे कि अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल हज़रत की खिदमत को कबूल फरमाए, और अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल उनके वारिसीन को सब्र जमील अता फरमाए और शहर में अमन व अमान बरकरार रखे। यकीनन आपकी दीनी मिली खिदमत हैं, सियासी और समाजी मसाइल पर आप बेबाक तरीके से बात करते थे, अपनी राय पेश करते थे। एक आलिम दीन, इस आलिम दीन की एक ख़ास बात थी। बिल्कुल आपने बजा फरमाया, जब भी कोई ऐसा मसला आता जिसमें पूरी बेबाकी के साथ और पूरी क़ुव्वत के साथ और पूरी शिद्दत के साथ कोई बात रखने की ज़रूरत पेश आती, तो हम भी हज़रत से गुजारिश करते कि हज़रत आप मैदान में इस वक्त कूदना है और काम करना है। तो हज़रत मुझे फ़ोन करके कहते हाँ हाँ आप कूद जाएंगे, अब कोई डर की बात नहीं है, चलिए जो भी होगा देखा जाएगा। पूरी शिद्दत के साथ उन सब का जवाब देना और उन सारी चीज़ों का मुकाबला करना। और इस इलाके में चूँकि KJ हल्डी DJ हल्डी का भी वाक़या पेश आया, उनकी रिहाई के लिए भी पेश रहते, और बहुत सारी मीटिंगें शाह वलीउल्लाह में मैं भी हाज़िर हुआ, और हज़रत मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब क़ासमी दामत बरकातुहू हम भी हाज़िर हुए, और यहाँ के जितने भी इससे मुतासिर लोग थे, अफराद थे, ख़वातीन थी, उनसे मिलना और उनके मसाइल को हल करना, और इस इलाके के MLA AC श्रीनिवासन साहब से भी मुलाकात करके और दूसरे जितने भी सियासी कायदीन हैं उनसे मुलाकात करके उन मसाइल को हल करने के सिलसिले में बड़े पेश रहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। एसोसिएशन CM में और यतीम खाना अहले इस्लाम और भी मिली तंजीमों से आपका ताल्लुक़ है, फरमाइए सर। आज हमारे लिए बहुत ही अफसोस का मकाम है कि हमारे 30 साल पुराने दोस्त ज़ैनुल आबिदीन साहब हमारे बीच नहीं रहे। मेरी और उनकी दोस्ती तो बहुत गहरी थी, और इनके बहुत से कारनामे हैं जो मैं जानता था। ये तो मजहबी इसमें जो है मौलाना अपना मदरसा चलाते थे, दूसरे तमाम चीज़ें करते थे, लेकिन समाजी ज़िंदगी में मेरी नज़र में उनके 2 बड़े कारनामे हैं। एक जो है सारी कौम एक तरफ थी, IMA के मामले में उनके अपना एक इरादा अटल था, और वहाँ जो उन्होंने बहुत से लोगों को वो नुकसान से होने से बचाए, अल्लाह इसका अजर देगा। और दूसरा इनका कारनामा है अटल बिहारी माफ़ करना अखंडा श्रीनिवास मूर्ति को, जो उसके खिलाफ खड़े हो गए थे, और इतनी मजबूती से अपने इरादे से खड़े थे कि कांग्रेस पार्टी को और लीडरान को तमाम को जो है अपना इरादा बदलना पड़ा, और यहाँ तक के कैंडिडेट को बदलाना पड़ा, और उसमें वो कामयाब रहे। मैं समझता हूँ ये इनकी ज़िंदगी के 2 अचीवमेंट हैं, अल्लाह इसका अजर देगा। मेरी दुआ है अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। बिल्कुल आपने कहा यहाँ पर IMA के खिलाफ थे, IMA जैसे जो सरमायाकारी थी तो उसके उन्होंने खुलकर मुखालिफत की, अटल इरादे के साथ, मजबूती के साथ। सारी कौम जो है वो एक तरफ थी, और इन्होंने अपने पक्के इरादे के साथ मजबूती के साथ IMA के खिलाफ लड़ते रहे, और इसे जो है बहुत सारे लोगों को इस नुकसान से उन्होंने बचाया है। बहुत सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बहुत दुख और दर्द की बात है कि आज अब तक जिनको हम दामत बरकातुहुम मोहम्मद फ़यूज़ुहुम उनके नाम नामी के साथ जी बोलते थे, लिखते थे, अब हमें रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहने पर मजबूर हो गए हैं। जी मुझे सबसे पहले इत्तला मैं यहाँ पर 2-4 दिन से लागे हल्ली
حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے مدرسے میں 2-4 دنوں سے میرا قیام ہے، اس لیے کہ یہاں پر جمعیت علماء کا کیمپ علماء کرام جو نئے فارغ شدہ علماء کرام ہیں ان کا تربیتی کیمپ چل رہا ہے، تو جس کی غرض سے ہمارے صدر محترم حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب کی ایما پر میں یہاں پر آ کر رہ رہا ہوں۔ چنانچہ جب بنگلور شہر جانے کا کم اتفاق ہوا اور حج کے سفر سے بھی واپسی ہوئی، اس کے بعد یہی قیام ہے۔ آج ابھی ایک 25-30 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے مفتی صاحب کو فون آیا تو انہوں نے فوراً مجھے بتایا، پھر اس کے بعد مجھے بھی فون ادھر ادھر سے آنے لگے اور میں حضرت مولانا محمد زین العابدین صاحب رشادی مظاہری محتمم دارالعلوم شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے جناب حافظ سعید صاحب سے میں نے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ 11:30 بجے آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے۔ حضرت موصوف بہت زمانے سے علیل تھے اور اب قریب میں 10-15 دن سے آپ کی طبیعت میں اضمحلال آ گیا تھا اور بہت زیادہ بیمار تھے، ڈاکٹر جواب دے چکے تھے، اس لیے آپ کے فرزندان اور آپ کے متعلقین آپ کو اپنے گھر شفٹ کر دیے۔ معلوم ہوا کل ڈیالیسس بھی ہوا اور آپ کچھ بات کرتے تھے، کچھ خاموش ہو جایا کرتے تھے، جو بھی آپ سے جا کر بات کرتے تھے سب سے معافی تلافی کی بات کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بال بال مغفرت فرمائے اور آپ کو آپ کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور آپ کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ جیسا کہ ہمارے صدر محترم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی بیماری ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو کچھ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس کی معافی تلافی ہو اور یا رفع درجات کا سبب ہو۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مومن کی موت کا وقت لاتے ہیں تو اسے مختلف بیماریوں میں مشغول کر دیتے ہیں۔ جیسے فرمایا ابھی کتاب الجنائز مشکات گویا میرے سامنے ہے، اس میں حدیث پاک میں ہے مومن کی حالت ایسی ہوتی ہے آخری وقت میں اس پودے کھیتی میں اس پودے جیسی ہے جس ہواؤں کی وجہ سے وہ پودا ادھر ادھر ہونے لگتا ہے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف گر جاتا ہے، کبھی کھڑتا ہے تو ہواؤں کی وجہ سے دائیں طرف ہو جاتا ہے، ادھر کی ہواؤں کی وجہ سے بائیں طرف ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کھیتی والا درانتی سے اسے کاٹ دیتا ہے۔ ایسے ہی حضرت بہت لمبی علالت کے بعد وفات پا گئے اور فرمایا گیا منافق کی موت کیا ہے؟ اغزۃ الاسف، اچانک کی موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی آخری وقت کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی خیر کے بھلائی کے فیصلے فرمائے۔ میں حضرت کے جو صاحبزادے ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے غم میں برابر شریک ہوں۔ میں نے تعزیتی کلمات ان سے بھی کی ہے، اللہ تبارک تعالی خیر کے بھلائی کے عفو کے عافیت کے فیصلے فرمائے۔ دوستو یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں مولانا زین العابدین رشادی کے آخری سفر کا۔ بنگلور کے ٹینڈری روڈ میں موجود عیدگاہ جدید میں آپ کی نماز جنازہ اور تدفین عمل میں آئی۔ مولانا زین العابدین رشادی کے اکلوتے فرزند حافظ سعید نے والد محترم کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بنگلور کے ٹینڈری روڈ کا یہ عیدگاہ تنگ دامنی کی شکایت کر رہا تھا۔ مولانا زین العابدین رشادی کی نماز جنازہ کے لیے نہ صرف بنگلور بلکہ ریاست کرناٹک کے دیگر شہروں سے لوگ امڑ آئے، جوک در جوک آئے، ہزاروں کا مجموعہ یہاں نظر آیا۔ درد بھرے، دکھ بھرے، اشک بھرے جذبات کے ساتھ مولانا زین العابدین رشادی کو سبھوں نے الوداع کیا۔ مولانا زین العابدین رشادی دارالعلوم شاہ ولی اللہ کے محتمم، جمعیت علماء ہند کرناٹک کے نائب صدر، کرناٹک ریاستی حج کمیٹی کے رکن اور بھی کئی ملی و سماجی اداروں سے وابستہ رہے۔ معلم الحجاج کے طور پر آپ کی خدمات جگ ظاہر رہی ہیں۔ تو دوستو ایسے اکابر عالم دین کی جب موت ہوتی ہے تو کہتے ہیں ایک عالم دین کی موت ایک عالم کی موت ہوتی ہے، ایک عالم دین کی موت ایک عہد کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔
Follow, follow.